اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ موضوع جو زیر بحث تھا گناہ اور توبہ، اسی کو لے کر آگے چلیں گے، اور جس طرح کے مختلف جہات سے ہم اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں مومنین کرام کے بعض سوالات کی بنیاد پر اور بعض جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان کی بنیاد پر، تو آج جو ہمارا سوال ہے اسی توبہ کے متعلق ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ انسان فقط زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، تو آغا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ حقیقی توبہ کیا ہے، اور فقط زبان سے کہہ دینا کہ میں نے توبہ کر لی، آیا یہی کافی ہے یا انسان کو اس کے لیے کچھ اور بھی کام کرنا پڑتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے جو ہے ہمیں مستفید فرمائے۔ انشاءاللہ خداوند متعال اس ماہ مغفرت سے ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اس ماہ رحمت سے ہمیں اپنی رحمت وسیع سے مستفید فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک فرصت ہے ماہ مبارک رمضان کہ خداوند متعال نے ہمارے شامل حال کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فرصتیں بار بار تکرار نہیں ہوتی، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، فرصت جو ہے یہ بادل کی طرح گزر جاتی ہے۔ جس طرح بادل کسی کا انتظار نہیں کرتے، آتے ہیں اور گرجتے ہیں، برستے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان ایک بادل ہے رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے نجات کا، جو آیا ہے اور برس رہا ہے، اور یہ کسی کا انتظار نہیں کر رہا، یہ برسے گا اور چلا جائے گا۔ خوش بحال ان کے کہ جو اس باران سے، رحمت کی باران سے استفادہ کریں گے اور اپنے نجات کی راہ حاصل کر لیں گے، اور جو ہے خدا کے اس رحمت واسعہ سے مستفید ہو جائیں گے۔ لیکن خدا جو ہے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس رحمت کی باران سے، بارش سے غافل رہیں اور یہ فرصت ہمارے ہاتھ سے گزر جائے اور یہ جو ہے رحمت کا بادل گزر جائے۔ تو چونکہ ماہ مغفرت ہے اور ہمارا بھی موضوع مغفرت و توبہ اور گناہ کے متعلق ہے، اور اسی طرح سے آپ کا سوال جو آج آپ نے کیا ہے کہ حقیقی توبہ کے متعلق آیا صرف زبان سے کہہ دینا یہ حقیقی توبہ ہے، یا حقیقی توبہ کی ماہیت و حقیقت کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے میرے خیال سے دوسرے سیشن میں توبہ کے حوالے سے مختصر بیان کیا تھا، اور چند راہیں عملی بیان کی تھی کہ کیسے انسان ان راہوں کے ذریعے سے حقیقی توبہ کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ راہیں جو ہم نے بیان کی تھیں، طریقے بیان کیے تھے حقیقی توبہ کرنے کے، وہ بہت مہم ہے، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ حتماً وہ دوسرے سیشن کو جو ہے سماعت فرمائیں، عملی راہیں تھیں اور مفید راہیں تھیں۔ آج ہم جو ہے راہوں سے و طریقے سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ صرف ماہیت حقیقی توبہ کے، حقیقی توبہ کس سے کہتے ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کا سوال بھی ایسا تھا کہ آیا زبان سے کہہ دینا یہ توبہ ہے یا حقیقی توبہ کوئی اور چیز ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، حقیقی توبہ کو جو ہے چند اصطلاحات میں بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے حقیقی توبہ کیا ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے سچی توبہ کے عنوان سے جو ہے بیان ہوتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی جو اصطلاح ہے وہ ہے توبہ نصوحہ، توبۃ النصوحہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، کہ یہ تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ حقیقی
तौबा का हो या सच्ची तौबा का हो या तौबा नसूह को हो, तौबा नसूह को हो, सब का माना एक है, यानी एक ही चीज़ को बयान कर रहे हैं। तो अलबत्ता जो है आयात और रिवायात में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में जो है बयान करना चाहूँगा इसी हकीकी तौबा को। हकीकी तौबा के 4 अरकान बयान किए गए हैं, 4 रुकन बयान हुए हैं कि अगर ये 4 रुकन उस तौबा के अंदर मौजूद हों तो उसको हकीकी तौबा कहते हैं। लेकिन अगर ये 4 रुकन मौजूद ना हों तो उसको हकीकी तौबा नहीं कहते। अलबत्ता मैं पहले इनको ऐसे सरसरी बयान किया था। सबसे पहला रुकन तौबा का तर्क गुनाह है। जो गुनाह आपसे सरज़द हुआ है और आपने उसकी तौबा की है, उसको कामिलन इंसान क्या कर दे, तर्क कर दे, छोड़ दे, जी कि दोबारा उसको तकरार ना करे। पहला रुकन है ये तौबा का। अगर इंसान तौबा करता है लेकिन गुनाह को तर्क नहीं करता, ये हकीकी तौबा नहीं है। कि हम तकरीबन रोज़मर्रा हमारी तौबा इसी तरह की होती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाए, हम तौबा कर लेते हैं, खुदावंद मुतआल से माफ़ी मांग लेते हैं, माज़रत कर लेते हैं, कहते हैं खुदाया माफ़ करें, हमें गलती हो गई, गुनाह की तौबा करता हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन दूसरे दिन फिर उसको क्या करते हैं, तकरार करते हैं। ये तौबा नहीं है। पहला रुकन तर्क गुनाह है, यानी जो आपने किया है आप उसको तर्क कर दें। दूसरा रुकन जो है निदामत है, पेशेमानी है, कि इंसान उस गुनाह के ऊपर पेशेमान हो, नादिम हो, शर्मिंदा हो कि ये क्यों मुझसे सरज़द हुआ है। यानी इंसान के अंदर एहसास शर्मिंदगी व निदामत व पेशेमानी पाया जाता हो, अपने किए पे पेशेमान हो, एतराफ़ करे कि मैंने गलत किया है। खूब अगर तौबा की है, खूब तकरार भी नहीं करता, तर्क भी कर दिया है लेकिन पेशेमान नहीं है, तब भी ये हकीकी तौबा नहीं है। बल्कि हकीकी तौबा इंसान उस गुनाह को तर्क करे और उस किए के ऊपर पेशेमान हो, नादिम हो, शर्मिंदा हो। और इसी तरह से जो है तीसरा रुकन इसका ये है कि इंसान उसके तर्क के ऊपर और दोबारा उसको अंजाम ना देने के ऊपर मोहकम इरादा रखता हो कि मैं इसको दोबारा अंजाम नहीं दूंगा। ये इसका तीसरा रुकन है। और चौथा रुकन जो है वो है तलाफ़ी व जुबरान। उस गुनाह का जुबरान करे, तलाफ़ी करे कि वो जो उससे सरज़द हुआ है। अगर ये 4 अरकान पाए जाते हों तो उस वक्त ये तौबा क्या है, हकीकी है, कि इंसान गुनाह को छोड़ दे हो और उसके ऊपर नादिम व पेशेमान हो और उसके ना करने का महकम इरादा रखता हो। और चौथा जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि तलाफ़ी व जुबरान करे। खूब जैसा कि आपने आयात और रिवायात में सुना होगा कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जो हबते आमाल का सबब बनते हैं, यानी आपकी नेकियों को खा जाते हैं। आपने जब बाज़ जो है अच्छे काम किए, आपसे एक गुनाह सरज़द हुआ, उस गुनाह ने क्या किया, उस गुनाह का अमली समरा ये हुआ कि आपके वो जो नेकियां थीं वो ज़ाया हो गई हैं। तो अब जो है आपने तौबा कर ली है, तो ये जो जुबरान है, जुबरान चंद किस्म का है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत करूँ। एक दफ़ा जुबरान ये है कि इंसान ने किसी का हक़ ज़ाया किया है, माल खाया हुआ है, तो इसका जुबरान ये है कि वो माल जिसका खाया है या हक़ ज़ाया किया है उस तक पलटाए, पहुँचाए, ये उसने जुबरान किया है। तो एक दफ़ा होता है, इस माना में नहीं होता, हक़ नहीं खाया, यानी माल नहीं खाया, लेकिन गुनाह ऐसा किया है कि जो उसकी गर्दन के ऊपर है। तो जिस तरह गुनाह नेकियों को खा जाते हैं, इसी तरह गुनाहों का जुबरान ये है कि आप उन गुनाहों को जो किया है नेकियों के ज़रिए से जुबरान करें। यानी बाज़ नेकियां भी ऐसी हैं कि जो गुनाहों को खा जाती हैं। दो तरफ़ा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा है कि फ़कत गुनाह हैं कि जो हमारी नेकियों को ज़ाया करते हैं, बल्कि बाज़ नेकियां भी ऐसी हैं कि वो गुनाहों को खा जाती हैं। तो जुबरान का माना यही है कि जो आपको पहले बयान किया है कि किसी का माल खाया है, किसी का हक़ ज़ाया किया है या कोई और, तो वो इंसान उनको पलटाए। लेकिन अगर इस नौइयत का गुनाह ना हो तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में ये करना है कि आप अपने
नेकियों से उन गुनाहों का जुबरान करो। तो फिर आपके ये गुनाह भी उन नेकियों की वजह से क्या हो जाएंगे, जुबरान हो जाएंगे, यानी नेकियां गालिब आ जाएंगी इन गुनाहों के ऊपर। तो ये दो तरफा तरीका है, इसको तौबा हकीकी कहते हैं। इसी तरह से जो सच्ची तौबा है वो भी इसी माना में है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो तौबा हकीकी है उसके अंदर 4 रुकन बयान हुए हैं, लेकिन इसके अंदर 5 रुकन बयान हुए हैं। जो सच्ची तौबा है, इसको तौबा रास्तीन भी कहते हैं, इसके 5 हुए हैं। वो जो अलबत्ता एक चीज़ इन दोनों में मुश्तरक है, वो ये है कि सबसे पहले इंसान गुनाह छोड़े और उसके ऊपर पेशेमान हो जाए, और चाहे वो सच्ची तौबा है चाहे वो जो हकीकी तौबा हमने कहा है वो। अलबत्ता एक चीज़ है, सिर्फ इस्तिलाहात का फ़र्क है और अरकान बाज़ जगहों पर ज़्यादा हैं, बाज़ जगहों पर कम हैं। लेकिन है एक चीज़, जैसे कुरान करीम की एक आयत भी है, व इन इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह। अव्वल आप इस्तग़फ़ार करो, यानी अपने आप को पाक करो, अपनी मग़फ़रत कराओ, यानी क्या, यानी गुनाह छोड़ दो, उसके ऊपर नादिम हो जाओ। जब आप पाक हो जाएंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे, पेशेमान हो जाएंगे, आप पाक हो गए हैं, तूबू इलैह, फिर तौबा करो अल्लाह की तरफ, यानी क्या, अपने खुदा की तरफ पलट आओ। खुदा की तरफ इंसान उस वक्त पलट सकता है कि जब पाक हो। इंसान जो कि पाक नहीं है, गुनाहों में आलूदा है, वो उस वक्त तक कि इन गुनाहों को नहीं छोड़ देता, इनसे पाक नहीं हो जाता, मुनज़्ज़ह नहीं हो जाता, वो खुदावंद मुताल की तरफ पलट भी नहीं सकता। तो तारक गुनाह को छोड़ना ये पहली शर्त है। अब जो तौबा सच्ची तौबा, जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, उसके 5 अरकान हैं। चंद अरकान वही हैं कि जो हमने बयान किए हैं। एक तो गुनाह को छोड़ देना, मैं इनको तकरार नहीं करूँगा चूँकि उधर बयान किए हैं। गुनाह को तर्क करना, गुनाह के ऊपर पेशेमान होना, और तारक गुनाह का मुहकम इरादा रखना, जुबरान करना उस गुनाह को, चाहे हकूकुल्लाह में हो चाहे हकूकुन नास में हो, वो हकूक इबाद में हो। और इसी तरह से इस्तग़फ़ार ज़बान के साथ भी करना, ये शर्त है। पहली जगह पर हमने इस्तग़फ़ार ज़बान की तरफ के साथ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर ज़बान के साथ इस्तग़फ़ार करना को भी एक रुकन के तौर पर किया गया है कि जब आप ये तर्क कर दें, पेशेमान हो जाएं, और इसी तरह से आपका तारक गुनाह के ऊपर मुहकम इरादा भी आप कर लें, जुबरान भी कर लें, तो फिर ज़बान के साथ भी आप क्या करें, इस्तग़फ़ार करें। इसी तरह से जो कुरान करीम के अंदर बयान हुआ है, तौबा नसूह, तो तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। खूब, तौबा नसूह ये यही हकीकी तौबा है, सच्ची तौबा है, लेकिन कुरानी इस्तिलाह तौबा नसूह है। ये नसूह क्या है, इसके मुताल्लिक़ आइम्मा अलैहिस्सलाम से जो है रिवायात आई हैं और इसका माना हुआ है। एक रिवायत है जो इसी आयत की तफसीर में है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से, जिसके अंदर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसी तौबा नसूह को बयान करते हैं, हुवा ज़म्बुल्लज़ी ला यऊदु फ़ीहि अबदा। तौबा नसूह उन गुनाहों से तौबा है कि जिनकी तरफ इंसान कभी दोबारा पलट के देखता ही नहीं है, असल पलटता ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा जब तौबा कर दी एक गुनाह से, दोबारा उस गुनाह की तरफ निगाह ही नहीं करता, मुड़ कर ही नहीं देखता और कभी अंजाम नहीं देता। ऐसी तौबा को तौबा नसूह कहते हैं। और इसी तरह से एक रिवायत है इमाम हादी अलैहिस्सलाम से, आप फरमाती हैं, अन यकूनल बातिनु कज़्ज़ाहिर व अफ़ज़ल मिन ज़ालिक। तौबा नसूह क्या है कि आपका बातिन आपके ज़ाहिर जैसा हो, यानी आपने जब एक गुनाह से तौबा की है, जो ज़ाहिरन की है, उसी तरह से आपका बातिन भी उस गुनाह से क्या हो जाए, मुनज़्ज़ह हो जाए। बल्कि आगे क्या फरमाया, वफ़ज़िल मिनज़ ज़ालिक, बल्कि इससे भी बेहतर हो, यानी आपका बातिन आपके ज़हर से भी बेहतर हो जाए, आपके ज़हर से भी अच्छा हो। ये तौबा नसूह है। इसी तरह से और भी रिवायात हैं, उधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत है, अन यतूबा ताइब सुम्मा ला यरजिउ फ़ी ज़ंबिन कमा ला यऊदुल लबन इला ज़र। तौबा नसूह ऐसे है कि इंसान गुनाहों से ऐसे ताइब हो जाता है,
ऐसे तौबा कर लेता है जिस तरह दूध दोबारा पिस्तान की तरफ पलट के नहीं जाता, इंसान भी इसी तरह दोबारा गुनाह की तरफ पलट कर नहीं जाता। आपको पता है कि जब एक दफ़ा दूध पिस्तान से बाहर आ जाए दोबारा दाखिल नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा नसूह ऐसी तौबा है कि उस दूध की तरफ जैसे वो पिस्तान की तरफ पलट कर नहीं जा सकता, इंसान दोबारा गुनाह की तरफ पलट कर नहीं जाता। असलन मुहाल होता है, यानी मुमकिन होता है कि इंसान उसकी तरफ पलटे। ऐसी तौबा को तौबा नसूह कहते हैं। जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि ये जो आपने सवाल किया है कि तौबा हकीकी क्या है, आया ज़बान से तौबा है या नहीं है, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि ये तौबा जो मैं नसूह बाज़ औक़ात कह रहा हूँ या बाज़ औक़ात हकीकी कह रहा हूँ या बाज़ औक़ात सच्ची तौबा कह रहा हूँ, ये एक ही चीज़ है, एक ही माना है। खूब, बस तौबा ऐसी तौबा है कि सबसे पहले इंसान गुनाह को तर्क करे, ऐसा तर्क करे कि दोबारा उसकी तरफ पलट कर ना जाए। इसी पलटने को यानी गुनाह से पलट कर खुदावंद मुतआल की तरफ आना, बर्गश्त करना, गुनाह से मुड़ जाना, अपने आप को मुंह मोड़ लेना गुनाह से, इसी को तौबा कहते हैं। और उसके ऊपर दोबारा क्या है पशेमान हो जाए और उसके तर्क के ऊपर मुहकम इरादा रखता हो और उसको जुबरान करे, वो जो किया है उसको जुबरान करे। अगर हकूक़ नास हैं तो उन हकूक़ को उन तक पलटाए या उनसे माज़रत खाई करे, और अगर हकूक़ुल्लाह हैं तो उसको भी जुबरान करें नेकियों के ज़रिए से। तो इस तौबा को तौबाए नसूह व तौबाए हकीकी व तौबाए वाक़ई या सच्ची कहते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान कर ले तो उसकी तौबा हकीकी है, चाहे वो ज़बान से ना भी करे मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इस अमल को अंजाम दे ये वाक़यान हकीकी तौबा है। और ये किस तरह से इंसान ये कर सकता है और दोबारा तकरार गुनाह से बच सकता है, जैसा कि आगाज़ में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, इसके रास्ते हैं, तरीक़े हैं, राहें हैं कि जो हमने दूसरे सेशन में बयान किए थे। मोमिनीन करम, वाक़यान इसी तरह है कि ये महीना इंसान के लिए एक बेहतरीन फ़ुर्सत है। और जैसा कि आगा साहब ने बयान किया कि रसूल अकरम की हदीस है कि सच्ची तौबा इस तरह है कि जैसे पिस्तान से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता, इसी तरह हकीकी तौबा वो है कि इंसान दोबारा गुनाह की तरफ नहीं पलट सकता। इसको हकीकी तौबा कहते हैं। खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ गो हैं कि इस नेक महीने में हमें सच्ची तौबा करने और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे दोबारा इसी बहस के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ। तमाम मोमिनीन अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।